lots of differences between you and Abhinay cropped up during the making of Delhi Belly. Yeah, they did. The rumors came out, but they were not true. Amir Khan cleared the air about the alleged differences between him and director Abhinay Deo at the first look launch of Delhi Belly. The game has already come out, and once Delhi Belly comes out, and it's good. They will be interviews said that maybe the film has been directed by Amir Khan. Well, yeah, let me address that issue. I think first of all, let me address that the rumors that came out about Abhinay and me were untrue. In the past, there have been similar rumors about Raju Hirani and me fighting, or Ashutosh and me having disagreements on Lagan. These were rumors. They were not true. None of these were true. None. Even this is not true. जो फिल्म हम बनाने चले थे वो अभिनय ने बहुत अच्छी तरह बनाई है. जो स्क्रिप्ट अभिनय के सामने आई थी और जब हम लोगों ने अभिनय को चुना एज ए डायरेक्टर, आई थिंक ही हैज़ डन फुल जस्टिस टू द स्क्रिप्ट. एंड एज अ प्रोड्यूसर मैं बहुत खुश हूँ जिस तरह से अभिनय ने फिल्म बनाई है, जिस तरह से उसका ह्यूमर आया है, जिस तरह से उसका एक्साइटमेंट आया है, जिस किस्म की फिल्म है. आई थिंक ही इज़ फुल्ली जस्टिफाइड the faith that we had in him. It was a packed media attendance today, and we were shown two promos from Delhi Belly. The first one was DK Bose, a racy rock number composed by Ram Sampath, very quirky lyrics, quirky visuals, and the first thing that comes to your mind immediately after having watched the promo is that can we watch it again, and who the hell is DK Bose? Daddy मुझसे बोला तू गलती है मेरी, तुझ पे जिंदगानी गिल्टी है मेरी, साबुन की शक्ल में बेटा तू तो निकला केवल झाग 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 भाग. कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन आती है जब हमको लगता है कि आंधी आने वाली है, और उस वक्त सिर्फ भागना ही, मतलब एक ही चारा रह जाता है कि आदमी को भागना पड़ता है. तो उस वक्त आदमी ये गाना गाता है, खुद के लिए ही गाता है. रोज आते हैं ऐसे मौके, तो रोज आते हैं भाई, रोज आंधियां आती हैं, रोज हमको भागना पड़ता है. आमिर, धोबी घाट की रिलीज से पहले धोबी शब्द से धोबी समाज आपके पास आया था, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी. हाँ. इसमें डीके बोस नाम का एक वर्ड है. हाँ. तो डीके बोस सब्जेक्ट करे, मुझे प्रॉब्लम नहीं है. The theatrical trailer stuns you with its unorthodox approach. The moment you hear Veer Das saying that ये शादी रोकना होगी because इस लड़की ने मेरे साथ blow job किया है, you are like, excuse me. Oh my God, लग गई क्या से क्या हुआ, देखा तो कटोरा, झांका तो कुआं. By the time the promo ends, you just can't help but laugh along with it. It's quirky, it's controversial. It has its moments which make you feel that you've never seen it in a Hindi film or an Indian film or a Bollywood film ever before. Why I'm not really using the word Hindi film, because most of this film happens to be in English. That's what we've been told. But it has all the regular stuff that you see in the Bollywood films. The locales are very, very desi, and the entire ambience is very, very desi. But the look of the film and the way it's been conceptualized, it's something totally different from what we've I think seen in an Indian film for a long, long time. So if you compare the promo of Game and Delhi Belly, there's a hell lot of difference. The first promo of Game. I do work on the promotion of my films. So yes, on the promos we have all sat together. Abhinay, me. There's a whole creative team that sits together and works on the promo, and जो फिल्म है हम उस फिल्म को सामने लाना चाहते हैं. The essence of the film is what needs to come out. जो मेरी प्रोडक्शन हाउस है या जो मेरी फिल्में हैं वो पारिवारिक होती हैं, सोशल कोई मैसेज होता है या फैमिली ऑडियंस फिल्में होती हैं, लेकिन ये पहली दफ़ा हमने एक फ़िल्म बनाई है जो बच्चों के लिए तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें जो भाषा है काफ़ी अश्लील है, और तो बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है ये फिल्म. एडल्ट्स सर्टिफिकेट है इसका, हमने एडल्ट्स के लिए अप्लाई भी किया था, हमें एडल्ट्स ही मिला है. और ना सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, लेकिन शायद उन लोग के लिए जो जिन्हें अश्लील भाषा से तकलीफ़ है उनके लिए भी नहीं है, क्योंकि ये इट्स अ फिल्म विच इज़ अ वेरी इररेवरेंट फिल्म. इट्स एम्ड एट द यूथ, जो हमारा यूथ है. मुझे बड़ी पसंद आती है, हालांकि मैं अश्लील भाषा का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, लेकिन
लेकिन ये फिल्म में जब मैंने एक स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे इतनी हंसी आई। और इसकी कहानी ऐसे है कि एक्चुअली मैं बहुत सारी स्क्रिप्ट्स आती हैं मेरे पास, तो अक्षत जो हैं वो कई महीनों से मुझे कोशिश कर रहे थे कि स्क्रिप्ट वो मुझे दें, स्क्रिप्ट दें, मैं पढूं, मुझसे मिलने की कोशिश कर रहे थे। एलए से ख़ास आए थे बम्बई, तो मैं मसरूफ़ था किसी फ़िल्म की शूटिंग में, मिल नहीं पाया मैं। तो उन्होंने जो मेरी घर में जो मेड है उनको दे दी मेरी स्क्रिप्ट। वो मेड ने पता नहीं कहाँ रखी, वो अल्टीमेटली मेरे टेबल पे आ गई घूम फिर के। और मैं एक दिन बिज़ी था, इंटरनेट पे ईमेल कुछ आंसर कर रहा था और किरण ने मेरा इंतज़ार कर रही थी किरण। तो इंतज़ार करते करते उन्होंने जो पहली स्क्रिप्ट थी उठाई। वो फाइल में करीबन 100-200 स्क्रिप्ट पढ़ी थी। उन्होंने पहली स्क्रिप्ट उठाई और पढ़ना शुरू किया। और फिर मैंने देखा कि वो हंसना शुरू किया। उन्होंने हंस रही थी, उनकी हंसी बढ़ती गई, फिर वो लोट-पोट हो गई, गिरने लगी फ्रॉम द सोफ़ा एंड शी वाज लाफिंग। इतनी हंस रही थी कि मुझे लगा यार ये क्या पढ़ रही हैं। तो मैंने पूछा व्हाट आर यू रीडिंग? तो शी सेड ये स्क्रिप्ट बहुत ही फ़नी है, इसका नाम डेली बेली है, आप ज़रूर उसको पढ़िए। तो मैंने फ़ौरन, मतलब जहाँ हम लोग कहीं बाहर जाने वाले थे रात को, तो वो भी कैंसिल हो गया। किरण ने वो स्क्रिप्ट छोड़ी नहीं, 90 मिनट में स्क्रिप्ट पढ़ी उन्होंने। उसके बाद मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी फ़ौरन। पढ़ने के इमीडिएटली बाद मैंने फर्स्ट पेज पे जो नंबर था, जिम और अक्षत, जिम इज़ वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स ऑन द फिल्म, उनको मैंने फ़ोन किया। वो एलए पहुँचे ही थे बम्बई से लौट कर। मैंने कहा मैंने आपकी स्क्रिप्ट अभी पढ़ी है तो मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ। तो वो फ़ौरन फ़्लाइट पकड़ के दोबारा वापस आए और फिर हम लोग ने बैठ के बातचीत की और हमने ये फ़िल्म मतलब की शुरुआत हुई वहाँ से इसकी फ़िल्म की शुरुआत हुई। अभिनय, आई हैड सीन हिज एड्स, so I was really impressed with his work. Abhinay came and read the script, he liked the script, and that's how Abhinay came on board. भाषा अश्लील है लेकिन बहुत ही funny है. It's very funny language, you know. It's Do you think it's not a sex comedy. There's no sex in it. I think Comic Caper is the best. It's मतलब बहुत ही कमीना कॉमेडी जिसको बोलते हैं, उस टाइप की फिल्म है, लेकिन सेक्स बिल्कुल नहीं है इसमें. I think it will change the definition of bored. Well, I don't know whether that's, you know, it's just a fun film, you know. I think हम लोग ऐसी फिल्में आमतौर पर बनाते नहीं. I'll give you a few examples. जैसे लॉक स्टॉक एंड टू स्मोकिंग बैरल्स थी, या मैंने सुना है हैंगओवर है, मैंने देखी नहीं है हैंगओवर, बट जो मुझे रिस्पांस मिला है लोगों का हैंगओवर से, उस जॉनर की है वो. कहानियाँ वो नहीं है, टोटली डिफरेंट कहानी है, इट्स एन ओरिजिनल स्टोरी, बट उस जॉनर की फिल्म है कि ह्यूमर है, यू नो, देयर इज लॉट ऑफ थ्रिल एंड एक्साइटमेंट एंड ह्यूमर. क्राइम एलिमेंट है, यू नो. नो मैसेज भैया आपको इसमें कोई मैसेज मिल जाए तो मुझे बोल देना, मैं भी सुनना चाहता हूँ. Many of the journalists had their questions centered around Aamir and Salman and the kind of friendly bantering that is going on between the two regarding Salman's marriage. Makes for interesting content, so let's bring you a brief collage of the Salman and Aamir अंदाज अपना moments. हाँ, देखिए ऐसा होता है, आप लोग मुझे जूते पड़वाते हैं. आप लोगों ने मुझे पूछा कि सलमान की शादी कैसे होगी, तो मैंने कहा वो तो ऐसे तो कर नहीं रहा है, हाथ पाँव बांध के करना पड़ेगा. तो अभी आप बता रहे हैं, उसने कहा कि वो हाथ पाँव मेरे बांधेगा ताकि मैं तीसरी शादी नहीं करूं. बिल्कुल सही कहा उसने, बिल्कुल सही कहा. अगर मेरे हाथ पाँव ना बांधे जाएं तो कुछ भरोसा नहीं है. लेकिन आमिर अब क्या करें? देखिए, सलमान मुझे हाथ पाँव बांध के तीसरी शादी से रोकेंगे, उससे हम सब खुश होंगे, कोई इससे हमको इतराज़ नहीं है. लेकिन हम लोग जो उनको हाथ पाँव बांध के शादी कराएंगे, उससे भी हम सब खुश होंगे. तो उनको बांधे तो हाथ पाँव मेरा चलेगा. उन्होंने बोला है कि आप उनके लिए लड़की खोजो कोई एक अच्छी सी. आप उनसे ये पूछिए कि जो लड़की मैं चुनूंगा फिर वो डिस्कशन नहीं करेंगे, हाँ बोलना पड़ेगा, फिर मैं चुनता हूँ लड़की. Aamir Khan admitted that there is a fantastic item song in Delhi Belly which is yet to be picturized. So who will it be? Katrina, Priyanka और दीपिका? और देखिए ऐसा है कि जब तक हीरोइन डिसाइड नहीं होती फिल्म के अंदर, मुझे बड़ा मज़ा आता है. सब हीरोइंस मुझे बहुत स्माइल करती हैं, जहाँ मैं जाता हूँ लड़कियाँ मुझे खूब स्माइल करती हैं, तो मुझे अच्छा लगता है, हाँ अच्छा है यार. तो मैं आदि को बोलता हूँ और थोड़ा टाइम लो, आराम से डिसाइड मत करो. और can we see the item boy Aamir Khan appearing himself? अरे आप लोग मुझे जूते खिलवाने वाले हैं यार. अभिनय विल टेक द फाइनल कॉल, मेरा डिसीजन नहीं है वो डायरेक्टर का डिसीजन है. बेसिकली जूते मुझे पड़ेंगे. Let's bring you highlights from this interesting and personalized press conference. नहीं, कुछ नहीं काटा. सेंसर को भी बड़ा मज़ा आया. तो सेंसर ने भी खूब मज़े लेके देखा फिल्म को, और कोई कट्स नहीं मिले हमको, क्योंकि हमने एडल्ट्स के लिए अप्लाई किया था. तो मुझे
भरोसा है कि हिंदुस्तान में जो adults हैं, they can decide for themselves what they want to see and enjoy some adult humor also. The film doesn't have any skin show, if that's what you're asking. There is no skin show, मतलब कपड़े कम पहनाए ऐसा कुछ नहीं है. भाषा जो है वो उसमें उस वजह से adults है. देखिए ये फिल्म मेरे हिसाब से जो मेरे यूथ ऑडियंस है ये उनके लिए डेफिनेटली है, और जो यंग एट हार्ट हैं उनके लिए भी है, बच्चों के लिए नहीं है. बच्चों के लिए आएगी, रीमा की फिल्म आएगी जो इस वक्त बन रही है, जो सस्पेंस ड्रामा है, वो एक फैमिली एंटरटेनर होने वाली है. दैट्स अ फैमिली एंटरटेनर. मतलब ये फिल्म वो है डेली बेली जो आप अपने पेरेंट्स के साथ नहीं देख पाएंगे या देखना पसंद नहीं करेंगे, और पेरेंट्स शायद देखें अलग से, बच्चों के साथ ना देखें. क्या ये यंग लोग मुझे बिगाड़ रहे हैं यार, क्या करूं. एक्चुअली मैं ये फिल्म में एक रोल करना चाह रहा था. मुझे इतना मुझे अफसोस होता है कि मैंने इस फिल्म में एज एन एक्टर काम नहीं किया, क्योंकि जो वो मोटा है ना नितिन, मतलब किरदार का नाम है नितिन, एक्टर का नाम है कुणाल रॉय कपूर. ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर. वो रोल मुझे बहुत पसंद था. तो इमरान और कुणाल और वीर, ये तीनों इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, और वो जो रोल था मुझे बड़ा पसंद था और मुझे बहुत हंसी आती थी. जो एक वन लाइनर्स है ना इस फिल्म के अंदर, बहुत फनी है. तो मैं बहुत करना चाह रहा था, लेकिन उसके लिए मोटा होना पड़ता है. द कैरेक्टर इज सपोज्ड टू बी फैट एंड स्लॉबी एंड I didn't want to put on weight. I've just worked very hard to lose it here. Yeah, it's been in making for quite some time, and that's actually my fault. क्योंकि मुझसे एक वक्त पे एक ही काम होता है, और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मेरी 2-3 फिल्में एक साथ मैंने जो प्रोड्यूस की, वो तीनों का काम एक साथ कंप्लीट हो गया, मुकम्मल हो गया. और तीनों फिल्में जो अपना पीपली लाइव, धोबी घाट और दिल्ली वैली, तीनों एक साथ मतलब कंप्लीट हो गई. बट एज अ प्रोड्यूसर मैं एक ही फिल्म को ठीक से रिलीज़ कर सकता हूँ एक वक्त पे. तो पहले पीपली लाइव रिलीज़ हुई तो बेचारा अभिनय वेट कर रहा था. फिर धोबी घाट रिलीज़ हुई और अब दिल्ली वैली रिलीज़ हो रही है. सो दैट डिले इज़ माई फॉल्ट. यू सेड गेम हैज़ नॉट डन वेल. सी, आई मीन, I have not seen the film Game, but I know that Abhinay has worked very hard, because when we were actually had taken a break from Delhi Belly, that's when he went and shot Game. And I know that he was very involved with the film. He had worked very hard. The entire team had worked very hard. I think the people behind Game, the makers of the film, and the cast and crew have obviously worked very hard to work on the. They have worked very hard on the film, and the film, as it turns out, has not, unfortunately, not done well at the box office, and that happens. I think that मेरी भी कई फिल्में हैं जो कामयाब नहीं हुई हैं. I think you should not be discouraged by that. I feel that you've worked hard, and when a film doesn't do well, I believe that I look upon it as a learning experience. That's how I look at it always. अमिताभ जी की भी फिल्म आपके साथ ही रिलीज हो रही है 1 जुलाई को. मुझे पता नहीं कौन सी. बुढ़ा होगा तेरा बाप. Okay. Okay, मुझे पता नहीं. बट आई थिंक दैट मतलब एक साथ फिल्में तो आती रहती हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है. दिल और घायल आई थी एक टाइम पे, और वेलकम और तारे ज़मीं पर साथ में आई थी, लगान एंड गदर. तो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं. मुझे लगता नहीं कि उससे कोई फ़र्क पड़ता है. अगर आपकी फ़िल्म अच्छी हो तो ऑडियंस आपकी फ़िल्म देखना चाहेगी. अगर आपकी फ़िल्म अच्छी नहीं हो, आप अकेले आए, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. श्री खान taken monopoly over Indian industry of picture. Yeah. Is there any conflict regarding your girlfriend to others? Among them, No, I have no dispute. About my girlfriend or girlfriends, I have no dispute. नहीं, पुलिस वाले का किरदार यार ऐसे मत बोलो. तो पहले तो वो अमित जी ने भी निभाया था, हाँ, जंजीर में. मैंने भी निभाया सरफरोश में. सिर्फ सलमान को क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए. मैं मानता हूँ दबंग बहुत बड़ी हिट है. Aamir told the media today that the budget of Delhi Belly is between rupees 20 to 25 crores, excluding the publicity cost, which is on the higher side considering that it's a film which is more or less in English. It's not for the family audience, admitted by Aamir himself. It has an A certificate. Aamir has said that it's not for kids either. So it's not your regular film which is coming in the theaters near you. But still, it's a risk, and the promos are very, very entertaining. And considering it's an Aamir Khan film, and the kind of expertise that Aamir has in promoting his films, it wouldn't be surprising that this film works at the box office as well. But for that, we'll have to wait and watch. The budget is, it'll end somewhere between 20 and 25.
I don't know the exact. Yeah, it's on the higher side. I'm worried about that. There was a news report that stated that Aamir is doing a chat show, something on the lines of Oprah Winfrey. Aamir denied that categorically. He also said that he's not doing television at the moment at all. The chat show host. For what? No. What about the Oprah show? Will you be featuring in it? No. He's going to be doing a show like No. Going to Oprah show? No. No. You're apparently doing a chat show which is along the lines of Oprah. No, I haven't. No such thing. Are you doing television? No. Just making sure. Na? Tuck. This is Faridoon Shahryar with cameraman Tahir Sheikh for Bollywood Hungama News Network. List of Times 50 most powerful people. How do you feel about this? Powerful people. Times of India. Yeah, Times of India. Oh. I don't know. I don't see myself as a powerful person. I feel I'm someone who is as weak or strong as the next person. I think, I don't see power in that. I don't ever use my power or whatever power any of us has. I believe that, if you have a certain amount of strength, you should use it productively. यार पावर क्या होता है मुझे समझ नहीं आता. अच्छा काम करिए अपने जो कुछ आपकी ताकत है, जो कुछ आपका इन्फ्लुएंस है, जो लोग आपकी इज्जत और प्यार देते हैं आपको, उसका आप सही इस्तेमाल करिए. बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास बहुत ताकत है, पावर है, लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं करते, तो फिर वो उसका फ़ायदा क्या.